Morning, church. So happy. How many of y'all enjoyed in the presence of Lord? कितने लोगों ने प्रभु की उपस्थिति में आनंद उठाया? Yeah, it was it was awesome. ये अद्भुत था. Yeah, let's open our Bibles to Luke chapter 22. हम अपनी बाइबल को लूका की 22 अध्याय में खोलेंगे And let's look at verse 14. और उसकी 14 वचन पे हम पढ़ेंगे. Luke chapter 22 from 14 onwards. लूका का 22 14 से. Basically, I just want to give you an overview of what this chapter is. मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि ये अध्याय किस बारे में बात कर रहा है. It's basically talking about the Last Supper with the disciples. और ये उस आखिरी समय के बारे में बताया गया है जो यीशु ने अपने शिष्यों के साथ गुजारा था. We'll read from verse 19 onwards. हम 19 वचन से पढ़ेंगे. And it says, and he took bread and gave thanks and broke it and gave it unto them, saying, this is my body which is given for you. Do this in the remembrance of me. और ऐसा लिखा है कि उसने रोटी को लिया और उसको तोड़कर धन्यवाद दिया और उसके शिष्यों को देकर ये कहा कि ये मेरी याद में किया करो. Now, for many of you all, you almost know that the bread that we eat, we call it communion. और हम सब जानते हैं कि जो रोटी को जिसको हम खाते हैं उसको हम प्रभु भोजन बोलते हैं, है ना? In different denominations, it has been used as Eucharist. और अलग अलग जो डिनोमिनेशन है उसमें इसको अलग अलग नाम से बुलाया गया, जैसे यूकरिस्ट. Anybody from Catholic background, you all must be familiar. कोई कैथलिक बैकग्राउंड से है हमारे बीच में? Yeah. Thank you for coming to the आपका light. स्वागत है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. So, most of my friends who are Catholic, whenever they come on Easter, Good Friday, they always are very dressed up holy, and they are like, we want to attend the Eucharist today. तो बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं जो कैथलिक है वो गुड फ्राइडे और ईस्टर के दिन वो लोग तैयार होके आते हैं कि आज हम प्रभु भोजन में भाग लेंगे. But we are going to look today at something very important. लेकिन आज हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पर ध्यान देंगे As to what is the significance of this communion and what ideally is I'm going to give you a different view of how we have been looking at it. प्रभु भोजन का जो असली मतलब है उस पर हम ध्यान देंगे. Yeah, so when Jesus broke off the bread in Hebrew it's called as matzo. तो जब यीशु ने उस रोटी को तोड़ा, इब्रानी भाषा में उसको मात्सो ऐसा कहा जाता है. It's called an unleavened bread. उसका मतलब बिना खमीर वाली रोटी. Okay. Now, as we read in Luke chapter, what did Jesus do? He broke the bread and he gave thanks. और हम देखते हैं कि लूका में यीशु ने उस रोटी को तोड़कर धन्यवाद दिया. Now, this bread that Jesus broke, like we said, it is also called as Eucharist. अब ये रोटी जो यीशु ने तोड़ा, जैसे हमने कहा, उसको यूकरिस्ट भी कहा जाता है. And the word Eucharist comes from a Greek word called Eucharistia. और जो शब्द है यूकरिस्ट वो एक यूनानी भाषा से आता है called Eucharistia. जिसको यूक्रिस्टिया ऐसा कहा जाता है. And उसका मतलब in simple word is a blessing. और उसका अर्थ ऐसा आता है कि वो एक आशीष है. Or a thanks, give a thanks basically. या धन्यवाद देना. Now how does this signify in the communion that we are talking about? अब इसका क्या उद्देश्य है हमारे प्रभु भोजन के साथ? So as you guys know, communion started back when Lord told Moses to cut the lamb, put the blood of the lamb on the doorpost. और हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत तब हुई जब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जो मेमना है उसके लहू को दरवाजे के चौखट पे लगाना है. So in Hebrew culture or in Jewish culture, और यहूदी जो कल्चर है उसमें हम देखते हैं what happens is on the day of the Passover, जो फसह का पर्व जो होता है उस दिन they sit together as a family on the table. वो एक साथ एक परिवार के तौर पे बैठते हैं. And then the bread is broken and given to all the family.
और उस रोटी को वो तोड़कर हर एक परिवार के हिस्से को, हर एक परिवार के सदस्य को देते हैं। And not only that, but a thanks is given, a thanks prayer is given, और धन्यवाद की प्रार्थना भी वो देते हैं। which we also saw in Luke, Jesus saying that. He broke the bread and he gave thanks. और हमने देखा कि यीशु ने भी लूका में वही किया कि उसने उस रोटी को तोड़कर धन्यवाद दिया। Now what is this thanks? The word thanks in English, we think that, okay, Jesus must have just thanked, but it is not what that it is. और ये धन्यवाद जो है हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि यीशु ने सिर्फ धन्यवाद ऐसा कहा होगा। But in Hebrew culture, लेकिन इब्रानियों का जो the Jewish, कल्चर the है, people of Israelites, when they broke the thanks, they had to say a prayer, a small prayer, which is also mentioned in the Bible. लेकिन जब यहूदी लोग इस रोटी को तोड़ते थे मूसा के समय में तो उनको एक प्रार्थना भी कहना होता था। I'm going to say that in Hebrew. और So उसको forgive my Hebrew if I make any corrections, but I believe I've done it good. So it says, और मैं इब्रानी भाषा में उसको बोलूँगा। the prayer is called as Motzi, M-O-T-Z-I. इस प्रार्थना को मॉर्जी ऐसा कहा जाता है। And Jesus did this before he gave the bread to his disciples. और यीशु ने इस प्रार्थना को किया उसके शिष्यों को रोटी देने के पहले। He said, उसने कहा, Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha-olam ha-motzi lachem min ha-aretz. Meaning, blessed are you, Lord our God, इसका मतलब ऐसा है कि तू धन्य है हमारे परमेश्वर, King of the universe, इस सृष्टि का तू राजा है, which brings forth bread from the earth. जो इस पृथ्वी से रोटी को उगाता है। Again, I'll repeat this. Blessed are you, Lord our God, धन्य है तू परमेश्वर जो हमारा प्रभु है, which brings forth bread जो रोटी को उपजाता है from the earth. इस धरती से। So you see, Jesus was not just praying, it is not just the bread that is important, but the thanks which was given for the bread is important. सो हम देखते हैं कि ये सिर्फ रोटी का यहाँ पे महत्व नहीं था, लेकिन जो धन्यवाद के साथ उस रोटी को लिया जा रहा था वो महत्व का था। Now this bread that we are talking about, what does it represent? अब ये रोटी जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या दर्शाता है? It talks about the suffering, the sorrow, the pain that Jesus had to bear, right? The और- body, the bread represents the body of Christ, right? और ये उस पीड़ा को, उस तकलीफ को दर्शाता है जो यीशु ने अपने शरीर में लिया था। But yet in the spiritual realm, guys, I want you to think, for his body, he knew that his body is going to be broken, and yet for his body, he is giving thanks to the Father. और आत्मा में यीशु को पता था कि उसका शरीर तोड़ा जाने वाला है, और फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद कह रहा है उसके शरीर के लिए। And it goes on saying that the more thanks we give to the Father, the more realistic, or the more your problems and whatever hindrances and whatever things you're stuck in, that's just going to be disappearing like that. और जितना हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं, जितना हम आभार प्रकट करते हैं, उतनी हमारी समस्याएं छोटी होती जाती है और गायब हो जाती है। We should be thankful to God for whatever He has given us and not for what He has not given us, basically. और हमने उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को जो भी हमको उसने दिया है, और ना कि उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो हमको नहीं मिली है। Basically, it says, be thankful for your life and not for the things that are of the life. और इसका मतलब ऐसा है कि हम अपने जीवन के लिए हमको धन्यवाद प्रकट करना है, आभार प्रकट करना है, और ना जीवन की चीज़ों के लिए। When Jesus gave thanks for the bread, He was turning that curse into a blessing for us. और जब यीशु उस रोटी के लिए धन्यवाद दे रहा था तो उस श्राप को वो हमारे लिए एक आशीष में बदल रहा था। That bread which signifies His pain, His suffering, His stripes, that was getting transformed for our healing. और वो रोटी जो दर्शा रहा था कि यीशु को कोड़े लगने वाले हैं, उसको तकलीफ होने वाली है, वो हमारे आशीष का कारण बन रहा था। So today I just want you to focus on Jesus. Let's close our eyes. तो मैं चाह रहा हूँ कि हम आंखें बंद करें और यीशु पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। Father, we are thankful for this wonderful sacrifice that you have given us. पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत से बलिदान के लिए जो तूने दिया। And Lord, yes, we are going to live a thankful life और हम एक आभार वाला जीवन जिएंगे पिता, because you have given us your all. क्योंकि तूने हमको अपना सब कुछ दे दिया, You did not even leave a drop of your blood, और तूने अपने लहू का एक कतरा भी नहीं छोड़ा, but all that was given for each one of us sitting here and also for the people out there.
और तेरा लहू हम सब के लिए जो यहाँ बैठे हैं और बाहर जितने लोग हैं उन सब के लिए तेरा लहू दिया गया। And Lord, we receive all your promises. और प्रभु हम तेरे सारे प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करते हैं, We receive all your blessings. तेरी सारी आशीषों को हम ग्रहण करते हैं। And we declare that of God I am in Christ Jesus. और हम घोषणा करते हैं कि हम यीशु मसीह में परमेश्वर के हैं। Father, as we partake of this पिता जैसे हम blessing, इसमें भाग ले रहे हैं इस आशीष में, I pray, Father God, that open our mind मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता हमारी आंखों को खोल, so that we are able to see ताकि हम देख पाए, and that we are able to grasp कि हम समझ पाए what is the exceeding greatness of your power that dwells within us. क्या है वो अद्भुत सामर्थ तेरी जो हमारे अंदर रहती है। Because Lord, we are more than conquerors in क्योंकि Christ प्रभु हम Jesus. जयवंत से भी बढ़कर है यीशु मसीह में। So Father, we thank you once again and we bless this communion. तो पिता हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं और इस प्रभु भोजन को हम आशीषित करते हैं। In Jesus' name we ask you, Father. यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, Amen. Let's Amen. partake it. हम इसमें भाग लेंगे। थैंक यू जीसस। सो आई एम श्योर आप सभी ने आज स्तुति आराधना और ये वचन को एंजॉय किया। हालेलुया, आमेन आमेन। ओके, सो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, जल्दी से एक ज़रूरी सूचना देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अभी हमने हर महीने का आखिरी रविवार हमने लेडीज़ मीटिंग के लिए रखा था कि लेडीज़ मीटिंग करेंगे, बट जैसे कि आपको पता है आज पुणे में पालकी फेस्टिवल है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक के लिए हमने आज जो शाम को लेडीज़ मीटिंग होने वाला था वो हमने पोस्टपोन कर दिया है। अब लेडीज़ मीटिंग आज ना होके 7 तारीख को है, 7 जुलाई, है ना। सो 7 जुलाई को वही समय 6:30 बजे एग्जैक्ट हम लोग चालू करेंगे और ये मीटिंग हमारे पास्टर जी उनके घर पे रहेगा पिंपली गौरव में, ठीक है। सो मैं एक बार वापस से, आई थिंक आंटी एडेड नहीं है ग्रुप में, आंटी अब पक्का से आज ग्रुप जो हमारा लेडीज़ ग्रुप है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ का लेडीज़ ग्रुप, अगर आप उसमें एडेड नहीं हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, है ना, या आप हमसे मिल सकते हैं, मीटिंग के बाद हम ऐड करेंगे। ओके, सो इसके अलावा आपको जैसे पता ही है कि अभी आज की जो मीटिंग है ये भी रिकॉर्ड हो रही है। जो वर्शिप हर हफ्ते का होता है, हर संडे का होता है, वो भी रिकॉर्ड होता है और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर प्लेलिस्ट है, वर्शिप की वीडियोस का एक अलग प्लेलिस्ट है और जो हमारे संडे का सर्मन्स हैं, जो प्रीचिंग है उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट है। सो आप ये वचन वापस से सुन सकते हैं, नोट्स बनाइए और ये वचन शेयर कीजिए दूसरों के साथ। आमेन, यस। सो जैसे आपको पता है कि किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ का एक भाग है KBS बच्चों का, जिनकी मीटिंग्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होती है। इसके लिए अधिक सूचना अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप लाइव देखेंगे, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, हम आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। हालेलुया, आमेन। ओके, सो यस, स्टार्ट किया जाए। रेडी हैं आपका आज का वचन सुनने के लिए? आमेन, यस। सो प्रभु हमसे बात करेंगे उनके वचन के द्वारा, सो अपने मनों को हम तैयार कर लें। सो जल्दी से लेट्स वेलकम जो आज हमारे साथ बांटने वाले हैं वचन, ब्रदर क्लिफर्ड, और ट्रांसलेशन के लिए ब्रदर आशीष। सो एक जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. What an awesome Jesus we serve. कितना अद्भुत यीशु है जिसकी हम सेवा करते हैं। Hallelujah. What a mighty God we have. कितना महान परमेश्वर है हमारा। The God who is the creator of heavens and the earth.
वो परमेश्वर जो सृष्टि और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर है, The one who has not only made the visible but also the invisible. वो परमेश्वर जिसने जो चीज़ें आंखों से दिखती है केवल वो ही नहीं, लेकिन जो आंखों से नहीं दिखती चीज़ें वो भी बनाई है। Hallelujah. हालेलुया। He is the king. He is the king, eternal, immortal, invisible. वो हमेशा का राजा है जो नहीं दिखता, जो कभी मर नहीं सकता, जो अमर है। The Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर। Hallelujah. Thank you, हालेलुया। Jesus. धन्यवाद यीशु। You know, words are not good enough to praise Him. हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे जब हम उसकी स्तुति करेंगे तब। That's the reason I believe that all the languages in the world, all the words in the world are not good enough to praise our Master. इसलिए इस संसार की सारी भाषाएं, सारे शब्द कम पड़ जाएंगे उसकी स्तुति करने के लिए। That's the reason the Lord gave us the baptism of the Holy Ghost, इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया है so that we could praise Him in an unknown tongue. कि जिसके द्वारा हम अन्य भाषा में उसकी स्तुति करें। Only Jesus can be praised in an unknown tongue. केवल यीशु है उसकी हम स्तुति कर सकते हैं अन्य भाषा में। Hallelujah. हालेलुया। If you want to, edify anybody, you can only edify that person in a known tongue. अगर आप किसी की उन्नति करना चाहते हैं तो आप जो बोलचाल की भाषा है उसमें आप उसकी उन्नति कर सकते हो। But only Jesus can be praised in an unknown tongue. लेकिन केवल यीशु है जिसकी हम स्तुति अन्य भाषा में कर सकते हैं। Because when you are praising Him in an unknown tongue, it goes beyond English, Hindi, Marathi, whatever. क्योंकि जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी के भी ऊपर चली जाती है। Hallelujah. हालेलुया। He deserves the praise and the glory and the honor. वो सारा आदर महिमा के योग्य है। Man, I sense the anointing just coming so strong. मैं अभिषेक को यहाँ उतरते हुए देख रहा हूँ। I've just yielded myself to the anointing. That's it. मैं खुद को समर्पित कर रहा हूँ उस अभिषेक के लिए। Hallelujah. Hallelujah. It's the anointing of joy. ये आनंद के अभिषेक है। It's the joy unspeakable and full of glory. वो आनंद जो बयान नहीं कर सकते और महिमा से भरा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Joy that no man can give. वो आनंद जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता। It's the manifestation of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण है वो। Hallelujah. Hallelujah. Sing to the Lord a love song. Sing His praise to the ends of the earth. Let every nation tell it, declare it, till every man has heard. Glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. We give you glory, 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 Lord. You are the mighty God. You are the mighty God. Glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. We give you glory, 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 Lord. You are the mighty God. You are the mighty God. You who go down to the sea, you who live in India, if you live in Pune, lift your voice and sing out, glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. We give you glory, 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 Lord. You are the mighty God. You are the mighty God. Sing to the Lord a love song. Sing His praise to the ends of the earth. And let every nation tell it, declare it, till every man is heard. Glory, glory, Lord. Let's give Him glory. We give you glory, Lord. We give you glory, 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 Lord. You are the mighty God. You are the mighty God. Go up the line. Go Yeshua. Go तुला तू महान आहे. ओ तू महान आहे.
तुला ओ गौरव गौरव तुला तू महान आहे तू महान आहे महिमा महिमा यीशु तुझे ही महिमा यीशु महिमा महिमा यीशु तू महान है ओ तू महान है glory glory Lord we give you glory Lord we give you glory 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 Lord you are the mighty God you are the mighty God you are the only God you are the living God you are the mighty God hallelujah hallelujah ora bashendere bekeltele thank you Jesus धन्यवाद यीशु hallelujah हालेलुया oh we give you praise wonderful Father पिता हम आपका धन्यवाद करते hallelujah हैं thank you Jesus धन्यवाद यीशु hallelujah thank you Lord I give you praise hallelujah राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद यीशु तुला ओ राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद यीशु तुला धन्यवाद यीशुला धन्यवाद यीशुला ओ बोला बोला धन्यवाद यीशुला ओ धन्यवाद यीशुला हालेलुया राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद यीशुला हालेलुया राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद यीशुला महिमा हो द्या त्याला महिमा हो द्या त्याला महिमा हो द्या त्याला ओ यीशुला महिमा हो द्या त्याला ओ यीशुला महिमा हो द्या त्याला हालेलुया राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला महिमा हो द्या त्याला हालेलुया राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला महिमा हो द्या त्याला गौरव हो गौरव द्या त्याला ओ येशूला गौरव द्या त्याला ओ येशूला गौरव द्या त्याला ओ येशूला गौरव द्या त्याला हालेलुया राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला गौरव द्या त्याला हालेलुया राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला गौरव द्या त्याला यीशु 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 हम गाएंगे गाते 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 हम नाचेंगे यीशु 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 हम गाएंगे ओ गाते 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 हम नाचेंगे ओ हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया यीशु 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 हम गाएंगे ओ गाते 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 हम नाचेंगे ओ बोलो यीशु 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 हम गाएंगे ओ गाते 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 हम नाचेंगे हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया यीशु 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 हम गाएंगे ओ गाते 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 हम नाचेंगे ओ बोलो यीशु 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 हम गाएंगे ओ गाते 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 हम नाचेंगे ओ हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया ओ हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया स्तुति हो द्या त्याला येशूला स्तुति हो द्या त्याला ओ येशूला स्तुति हो द्या त्याला येशूला स्तुति हो द्या त्याला हालेलुया राजांच्या राजाला प्रभूंच्या
प्रभूला स्तुती हो द्या त्याला. Oh hallelujah. राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला स्तुती हो द्या त्याला. Oh hallelujah. राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला स्तुती हो द्या त्याला. हालेलुया. Hallelujah. Man, I feel like just praising Him and blessing Him at all times. मुझे लग रहा है हम केवल परमेश्वर की स्तुति करें. For I will bless the Lord at all times. परमेश्वर मैं तुझे हमेशा धन्यवादित करूंगा. His praise shall be continually in my mouth. उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी. My soul shall make a boast in the Lord. मेरा प्राण परमेश्वर में घमंड करेगा. The humble shall hear thereof and be glad. जो नम्र है वो आनंदित होंगे. Oh, magnify the Lord with me, परमेश्वर को ऊंचा करो मेरे साथ and let us exalt His name together. और उसके नाम का हम सब एकत्रित ऊंचा करें. I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. मैंने परमेश्वर को खोजा और उसने मुझे सारे डर से मुझे छुटकारा दिया. They looked unto Him and they were lightened and their faces were not ashamed. जिसने उसकी ओर देखा उनके चेहरे प्रकाशित हुए. This poor man cried and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. इस नम्र व्यक्ति ने परमेश्वर को पुकारा और उसने उसके सारे परेशानी से छुटकारा दिया. The angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and delivereth them. परमेश्वर के स्वर्गदूत जो उससे भय मानते हैं उसके चारों ओर उसका घेरा किए रहते हैं. Oh, taste and see that the Lord is good. चक्कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है. Blessed is the man that trusteth in Him. वो मनुष्य धन्यवादित है जो उस पर भरोसा रखता है. Oh, fear the Lord, ye saints, हे संतो परमेश्वर का भय मानो for there is no want to them that fear Him. क्योंकि जो उसका भय मानते हैं उनको किसी भी चीज की घटी नहीं होती. The young lions do lack and suffer hunger, जो जवान सी है उनको कमी और घटी होती तो है, but they that seek the Lord shall not want any good thing. लेकिन जो परमेश्वर को खोजते हैं उनको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी. Come here, children, hearken unto me. I will teach you the fear of the Lord. आओ बच्चों मेरे पास आओ, मैं आपको परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा. What man is he that desireth life and loveth many days that he may see good? ऐसा कौन सा मनुष्य है जो ज्यादा जिंदगी की कामना रखता है. Keep thy tongue from evil and thy lips from speaking guile. अपने मुख को बुरी चीजों से बचा कर रख. Depart from evil and do good. बुराई से दूर रहे और अच्छे अच्छे काम कर. Seek peace and persuade. शांति को ढूंढ. For the eyes of the Lord are upon the righteous, क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है and His ears are open unto thy cry. और उसके कान उनके प्रार्थना के ऊपर लगे रहते हैं. The face of the Lord is against them that do evil, परमेश्वर का चेहरा उनके विरुद्ध होता है जो बुरे काम करते हैं, to cut off the remembrance of them from the earth. कि उनको इस धरती से उनको मिटा दे. The righteous cry and the Lord heareth and delivereth them out of all their troubles. धर्मी पुकारता है और परमेश्वर उनकी सुनकर उनके सारे परेशानी से उनको छुड़ाता है. Many are the afflictions of the righteous, धर्मियों को बहुत परेशानियां होती तो है, but the Lord delivereth him out of them all. लेकिन परमेश्वर उनको उन सब से छुटकारा देता है. He keepeth all his bones, उसकी सारी हड्डियों को वो सुरक्षित रखता है. not one of them is broken. उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती. Evil shall slay the wicked, जो बुरा है वो बुरा है वो नाश होगा, and they that hate the righteous shall be desolate. और जो धर्मी के विरुद्ध होते हैं वो दूर किए जाएंगे. The Lord redeemeth the soul of his servants, परमेश्वर उनके संतों के प्राण को वो नया कर देता है. and none of them that trust in him shall be put to shame. और जो कोई इस पर भरोसा रखते हैं वो उनकी कोई निंदा नहीं होती. Hallelujah. हालेलुया. This Psalm 34, meditate on it throughout the entire week. जो भजन संहिता 34 है उस पर आप Hallelujah. पूरे हफ्ते मनन कीजिए. Hallelujah. 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 राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद यीशु तुला. ओ राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद यीशुला. धन्यवाद यीशुला. धन्यवाद यीशुला. यीशुला. धन्यवाद यीशुला. धन्यवाद यीशुला. हालेलुया. राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला 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 धन्यवाद यीशुला.
In the presence of our Master is fullness of joy. हमारे परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. Not joy, but fullness of joy. केवल आनंद नहीं लेकिन भरपूरी. At His right hand there are pleasures forevermore. उसके दाहिनी ओर हमेशा का आनंद है. I said, at His right hand there are pleasures forevermore. उसके दाहिने हाथ में अनंत काल का सुख है. I said, at His right hand there are pleasures forevermore. मैंने कहा उसके दाहिने हाथ में अनंत काल का सुख है. Not at His left hand, but at His right hand. उसके बाएं हाथ में नहीं लेकिन उसके दाहिने हाथ में. And you and I, we are seated at His right hand. और आप और मैं उसके हम दाहिने ओर बैठे हैं. And when we are seated at His right hand, there are pleasures forevermore. और जब हम उसके दाहिनी ओर बैठे हैं तो अनंत काल का सुख वो हमारा है. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. हालेलुया. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Lift your hands and tell Him. अपने हाथों को ऊंचा कर उसको बताइए. Worthy is the Lamb. Worthy are you, Lamb. You are holy. Yes, you are holy. Are you, Lord God Almighty? Yeah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, you are. Are you Lord? Are you Lord God Almighty? Yeah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. We thank you, Lord. धन्यवाद देते परमेश्वर. You will glorify your Lamb in this place, Lord. आप आपके मेमने को आप यहाँ ऊंचा उठाओगे. Every word, every thought will bring glory to your name. हर एक विचार आपके नाम को महिमा देगा. And we as a church, we promise you and we vow that we will give you the glory. हम आपको वचन देते कलीसिया के नाते कि महिमा केवल आपको ही देंगे परमेश्वर. For every revelation that will come, Lord. जो हर एक प्रकाशन जो आएगा. Every inspired utterance that will come, O Lord God. हर एक बात जो पवित्र आत्मा हमें प्रोत्साहित करेगी. Every prophetic word that will come, O Lord God. हर एक भविष्यवाणी का वचन जो आपकी ओर से आएगा. Every marvelous manifestation that will take place in this place, O Lord God. हर एक अद्भुत काम जो यहाँ प्रकट होगे इस जगह पर. Everything that will happen in this place, Father. हर एक चीज जो यहाँ होगी प्रभु. We vow that we will give you the glory. हम वचन देते प्रभु की महिमा हम केवल आपको ही देंगे. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Thank you Jesus. Yeah, maybe be seated. Thank you. आप बैठ सकते हैं. Thank you, musicians. You are anointed by God. Thank you. Thank you, Lord. You know, I cannot do it without you all. You know, you got to have musicians, but they have to be anointed. आपके पास संगीतकार होने चाहिए लेकिन वो संगीतकार अभिषिक्त संगीतकार होने चाहिए. If the musician is not anointed, things won't happen. अगर जो संगीतकार है अगर उन पर अभिषेक नहीं है तो वो चीजें नहीं होगी. God anoints musicians in the church. परमेश्वर संगीतकारों का अभिषेक करता है उसके कलीसिया में. A person can have multiple giftings. एक मनुष्य के पास में बहुत सारे वरदान हो सकते हैं, गिफ्ट्स हो सकते हैं. Like my brother Manoj, he has multiple gifting by the Lord.
जैसे भाई मनोज है, उनके पास बहुत सारे वरदान हैं। He's a good musician, a good worshipper, a अच्छा। songwriter, a teacher, a preacher. On and on and on the list goes. अच्छा संगीतकार, अच्छा आराधक, अच्छा प्रचार करने वाला, शिक्षक, ऐसे बहुत सारे वरदान हैं भाई के ऊपर। God's great grace upon you. परमेश्वर का महान अनुग्रह आपके ऊपर है, And this grace that is upon you is going to greatly multiply. और ये जो अभिषेक आपके ऊपर है वो बहुगुणित होने वाला है। For you'll have grace heaped upon grace. वो ऐसा होगा कि अभिषेक अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। See, anything that we do for the Lord and with the Lord, it's only by His grace. जो कुछ हम परमेश्वर के लिए करते हैं वो केवल उसके अभिषेक, उसके अनुग्रह के कारण होता है। We don't do anything on our own merits. हमारे खुद के कोई कामों के कारण नहीं, God supplies the grace. परमेश्वर उसके अनुग्रह को देता है। That's why no wonder Paul the apostle, whenever he starts his epistles, he starts off with grace and ends up with grace. इसलिए जब कभी पौलुस ने जब कभी उसकी पत्री की शुरुआत और अंत किया तो उसने अनुग्रह के साथ किया। We were saved by grace and we will wind up with grace. वो शुरुआत उसके अनुग्रह से करता था और खत्म भी अनुग्रह से करता था। You know, it's very easy to start off in the Lord, देखिए बहुत आसान है परमेश्वर में शुरुआत करना, but it is not that easy to finish, लेकिन इतना आसान नहीं है पूरा करना। right? But by the grace of God, we will finish right. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम सही अंत को देखेंगे, करेंगे। Like we boast in the grace of God that we will finish right. हम परमेश्वर के अनुग्रह में घमंड करते हैं कि हम सही से अंत करेंगे। It's not our prayers that we pray, it's not the hours that we spend with the Lord, it is not even how much scriptures we know, the understanding of God's word what we know, but it's the grace that will keep us till the end. आप कितना वचन को जानते हैं, आप कितना वचन को, आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं उसके द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही चीजें होगी। If it was not for the grace of God, we all would have been dead and gone long time back ago. अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो कभी तो भी हम मर चुके होते। It's the grace of God that keeps us going. परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें चलाता है। Hallelujah. हालेलुया। For by grace are you saved through faith, it is the gift of God. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और परमेश्वर की ओर से तुम्हें दिया गया वो तोहफा है, वो वरदान है। Not of works, lest any man should boast. कामों के द्वारा नहीं कि जिसके कारण मनुष्य घमंड करे। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। All right, you know, I remember way back in 1990, तो मुझे याद है 1990 के दौरान, you know, this entire week the Lord was just fast forwarding what had happened, you know, a long time back. तो इस पूरे हफ्ता परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि जो बहुत साल पहले जो कुछ हुआ था वो परमेश्वर मुझे से दिखा रहा था। This is before I could get saved. ये बात है, ये चीज़ है जो जब मेरा नया जन्म नहीं हुआ था उसके पहले की। And so in 1990 it happened that I got much interested in sports. तो 1990 में ऐसा हुआ था कि मुझे जो स्पोर्ट्स से खेल है उसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा। I had never seen football, the European soccer. तो जो यूरोप का जो फुटबॉल है वो मैंने कभी देखा नहीं था। I had seen only Indian playing. मैंने केवल भारतीयों को खेलते हुए देखा था। And I thought that, my God, this sports is such boring. तो मैं ऐसे कहता था कि ये खेल कितना बोरिंग है। One person kicks the ball from here, it goes to the other end, and the other person kicks from there, and then it comes back. तो एक खिलाड़ी यहाँ से बॉल को किक मारता है तो दूसरे कोने पे जाता है, वहाँ से खिलाड़ी बॉल को किक मारता है तो इस कोने में आता है। Because that's the way I had seen the Indians playing. क्योंकि इस प्रकार से मैंने जो भारतीय जो खिलाड़ी थे उनको खेलते हुए देखा था। To be honest, Indians don't know to play soccer. सच कहूँ तो भारतीय जो खिलाड़ी उनको फुटबॉल कैसे खेलना वो नहीं पता। And it happened that with my school friends, they told me, "Did you watch this? Did you watch Maradona? Did you watch Pele? Did you watch this?" So I said, "Who are they?" तो जब मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि तूने मैराडोना को खेलते हुए देखा क्या, पेले को खेलते हुए देखा क्या, तो मैंने उनसे पूछा ये लोग कौन हैं। And then it happened that I bumped into one of the matches that was going on. I think it was the World Cup match. तो ऐसा हुआ कि मैं ऐसे टकराया कि जहाँ पर वर्ल्ड कप की मैच हो रही थी, फुटबॉल के वर्ल्ड कप की मैच हो रही थी। And when I saw those guys playing, I said, "Wow." और जब मैंने उनको देखा तो मैं ऐसे आश्चर्यचकित हो गया कि अरे क्या है ये।
this is one of the best game. ये बहुत बेस्ट खेल है. And then I started watching more और फिर मैंने और देखना शुरू किया and got so much hooked onto it और मैं इतना उसमें अटक गया that I used to watch for 3 hours, sometimes 4 hours. कि मैं 2-3-4 घंटे वो देखता था. I remember that we had bought, me and my friends, we had bought a videotape. That time we didn't have CDs and all the systems. तो उस समय हमने वीडियो टेप को खरीदा था. And the name of the tape was Superman of the Soccer. और उस टेप का नाम था सुपरमैन ऑफ सॉकर. जो And Brother Sam, they had all the greats. तो उसमें सब महान जो खिलाड़ी थे जो हो चुके हैं उनके क्लिप्स थे. And when I saw them, the way they play, the practice, their everything, I mean, like, I was fascinated. तो जैसे मैंने उनको देखा कि वो कैसे प्रैक्टिस करते थे, कैसे खेलते थे, तो मैं एकदम ऐसे आश्चर्यचकित हो गया. And then I took it very seriously. I started practicing. और मैंने उसको बहुत ही सीरियसली लिया और मैंने खुद प्रैक्टिस करना शुरू किया. I used to get up early in the morning at around 4:30, 5 o'clock, and I used to be there on the ground. और मैं सुबह 4:30-5 बजे उठता था और ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने के लिए रहता था वहाँ. And 5 to 6:30, I should practice, and then get ready and go to school. और फिर मैं 5 से 6:30 बजे तक फुटबॉल की प्रैक्टिस करता, फिर उसके बाद मैं स्कूल जाता. Come back from school again, be on the ground. स्कूल से वापस आता, फिर से मैं ग्राउंड पर जाता प्रैक्टिस करने. Another 2 hours. 2 घंटे और प्रैक्टिस करता था. My mom, my sister who's over here sitting, she'll tell me, she's a witness. They were fed up. मेरी बहन यहाँ साक्ष्य है, गवाही देगी कि मेरे माता पिता ऐसे परेशान हो गए थे. It's like you can get delivered out of a demon, but not out of a football. वैसा था कि दुष्टात्मा से छुटकारा मिलेगा लेकिन फुटबॉल से नहीं मिलेगा. Even nights when I used to sleep, believe me, I used to see all footballs. और आप विश्वास नहीं करोगे कि जब मैं रात में सोता था तब भी मैं फुटबॉल को ही देखता था. Football obsession. फुटबॉल का ऑब्सेशन हो गया था. And said I used to practice so much that my calves had become like an iron, almost like a stone. तो मैंने इतनी प्रैक्टिस किया कि जो मेरे पैर है वो ऐसे पत्थर के समान हो गए थे. And if you should see my running speed, swifter than a rocket. और अगर आप मुझे भागते हुए देखते तो मैं रॉकेट से भी तेज भागता था. And I loved the sport so much that I had collected all the pictures of all the footballers and I had pasted on my wall. और मुझे इतना पसंद था वो खेल कि मैंने सभी जो फुटबॉल के जो लोग थे उनके पिक्चर्स वहाँ पर मेरे घर पे दीवार पे लगाए. मेरे दीवार पे ना आपको कलर दिखेगा नहीं, लेकिन फुटबॉल के सारे पोस्टर्स दिखेंगे सब पे. जिधर भी देखिएगा आजू बाजू में सब पोस्टर्स फुटबॉल के. Anybody touches my posters, I should scream at the top of my lungs. और अगर मेरे पोस्टर को कोई छूता भी था तो मैं जोर से उनके ऊपर चिल्लाता था. So you can imagine, and I had practiced so much that I literally looking, I started just playing like them. मैं उनको इतना प्रैक्टिस किया, मैं इतना देख रहा था कि मैं उनके समान खेलना शुरू किया. If you start looking into this, अगर आपने इसमें देखना शुरू किया, you will start experiencing what this speaks about you. तो ये आप उसका अनुभव करना शुरू करोगे कि ये बाइबल आपके विषय में क्या कहता है. Hallelujah. हालेलुया. And you know, at school when I used to play, people used to, the boys used to just come and surround me just to watch me play. और जब मैं स्कूल में खेलता था तो जो बच्चे बाकी दूसरे बच्चे थे वो मेरे अगल बगल में आके देखना, मुझे खेलते हुए देखना पसंद करते थे. We still do play at times, but not the way I used to play before. तो हम अभी कभी तो खेलते हैं लेकिन उस प्रकार नहीं जैसे मैं जैसे पहले खेलता था. I had a flat belly. मेरा पेट एकदम पतला सीधा था. Real flat. I mean, no extra fats. कोई फैट नहीं था मेरे शरीर में. You can imagine, I used to play like anything. आप कल्पना कर सकते हो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते मैं इतना प्रैक्टिस इतना खेलता था. Because I knew that things won't come easily. क्योंकि मुझे एक चीज पता थी कि चीजें आसानी से नहीं मिलेगी. Saints, as it is in the natural, so it is in the spiritual. संतो जैसे ही ये जो संसार में है वैसे ही वो आत्मिक जग में भी है. The anointing and the glory doesn't come automatic. अभिषेक और महिमा अपने आप नहीं आती. You and I, we have been saved by grace, but there's a price to be paid behind the doors.
हमारा अनुग्रह से उद्धार तो हुआ है, लेकिन उस अभिषेक के लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। He who loves his father, mother, brother, sister, wife, children more than me is not worthy of me, saith the Lord. जो कोई अपने माँ बाप बेटा पत्नी पति उनसे मुझसे ज्यादा प्रेम करता है तो वो मेरे योग्य नहीं, ऐसा मसीह कहता है। Saints, listen, you know, the Lord will not demand it from a simple believer who just comes to church and then goes. तो संतो सुनिए, परमेश्वर ऐसी चीज जो साधारण विश्वासी जो केवल चर्च में आता है उनसे वो मांगेगा नहीं। But if you have a call of God upon your life and if you have made up your mind that no matter what, अगर परमेश्वर की बुलाहट आपके ऊपर है और आपने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, if I have laid my hand to the plow, I am not turning back. अगर मैंने मेरा हाथ उस हल पे रख लिया तो मैं वापस मुड़ के नहीं देखूंगा। Saints, there is a price to be paid to be a disciple of the Master. संतो, एक कीमत चुकानी पड़ती है उस परमेश्वर के शिष्य होने की। Can I tell you something? If I really knew what exactly it meant to be there in the ministry, I would never enter. Believe me. संतो, अगर मैं आपको बताऊं, अगर मुझे पता होता कि सच में सेवकाई में रहना क्या होता है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं सेवकाई में कदम नहीं रखता। Because I thought it was ministry means I had a cordless mic, मुझे लगता था कि जो सेवकाई है वो ऐसा है कि एक कॉर्डलेस माइक होगा मेरे पास, a huge crowd in front of me, एक बहुत बड़ी भीड़ मेरे सामने होगी, lot of people applauding, बहुत सारे लोग ऐसे तालियां बजा रहे होंगे, miracles taking place. ये चमत्कार हो रहे होंगे I'm well known worldwide. और मेरा पूरे संसार में बहुत बड़ा नाम होगा। I thought it was that. मुझे वैसा लगता था कि ऐसे सेवकाई होती है, But now I know what it is. लेकिन मुझे अभी पता चला है कि सेवकाई सच में सेवकाई क्या होती है। You lay yourself on the altar. आप अपने आप को उस वेदी पे अर्पण करते हो। The fire doesn't fall on empty altars. वो जो आग है वो खाली वेदी पे नहीं आती, It comes on the sacrifice. वो एक बलिदान पर आती है। And the Lord is not going to force us to come after Him. और परमेश्वर हमें जबरदस्ती नहीं करेगा कि तुम्हें ऐसा करना है। See, at the beginning when we get saved, the Master is always after us. जब शुरुआत में जब हमारा उद्धार हुआ है तब परमेश्वर हमारे पीछे आता है, जो यीशु हमारे पीछे रहता है, Because He doesn't want us to perish. क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारा नाश हो। But once you come to Him and once you taste of His love and His goodness, और लेकिन जब एक बार आप उसके प्रेम को चख लेते हो, उसकी अच्छाई को आप चख लेते हो, then He wants you to follow Him. तब वो चाहता है कि आप उसके पीछे चलो। Hallelujah. हालेलुया। You know, at the beginning when I got saved, शुरुआत में जब मेरा उद्धार हुआ, the Lord was so, He used to tell me, my sweetie and my cutie, whatever. तो शुरुआत में परमेश्वर, जब मेरा उद्धार हुआ तो परमेश्वर मुझसे कहता था कि तू मेरा प्रिय है, And my baby and all whatever. बेबी स्वीटी, ऐसा परमेश्वर मुझे बोलता था। And at times also tolerate with most of my nonsense. और बहुत बार मेरे जो मूर्खता को भी वो सहन करता था। But now He doesn't talk to me like that. Believe me, He doesn't talk to me like that. और मुझ पर भरोसा कीजिए, परमेश्वर मुझसे वैसे बात नहीं करते। Sometimes I hear Him saying, उठता क्या जल्दी से? Sometimes He uses bass voice. I can hear that bass voice. कभी कभी परमेश्वर मुझसे ऐसे बात करते कि जल्दी उठता है कि नहीं। You know, when you mature in the Lord, He talks to you very differently. जब आप परमेश्वर में सयाने हो जाते हो तो वो आपसे अलग तरीके से बात करता है। Because the Lord expects some maturity from us. परमेश्वर हमसे सयाना होना चाहता है। See, the Lord will never handle something and give it to a person who is not well matured to handle it. परमेश्वर कुछ चीजें ऐसे मनुष्य के हाथ में नहीं देगा जो सयाना नहीं है। David had to face a lion and a bear before he could face Goliath. दाऊद को पहले उस सिंह का सामना करना पड़ा गोलियत का सामना करने से पहले। No training, no reigning. कोई ट्रेनिंग नहीं होगी तो आप राज्य नहीं करोगे। If you want to reign, you have to be thoroughly trained. अगर आपको राज्य करना है, प्रभुता करनी है, तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। And nobody in the military, if you ask the people who are there in the army, in the navy, air force, nobody likes to be there trained. Nobody likes to be trained in the army. जो आर्मी नेवी या एयरफोर्स में होते हैं उसमें से किसी को भी पसंद नहीं होता वो ट्रेनिंग में जाना, Because the training is very hard. क्योंकि जो ट्रेनिंग है वो बहुत कठिन होती है। Some people leave halfway.
कोई कुछ लोग आधे में ही छोड़ के भाग जाते हैं, दम घुट जाते हैं उनके, नहीं इसे नहीं चाहिए, they give up. वो छोड़ देते हैं। But we are not the ones who will give up, आमीन। हम वो लोग नहीं हैं जो बीच में ही छोड़ देंगे, because the Lord is not interested in the person who will give up. क्योंकि परमेश्वर को उस मनुष्य में इंटरेस्ट नहीं जो बीच में ही छोड़ देगा। He wants us to press on. वो चाहता है कि हम और आगे बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, खत्म कर देगा, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। Nothing else they can do. इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। The Lord said, if they did not spare the master, you think they will spare us? परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने अगर जो मालिक है उसको भी नहीं छोड़ता तो क्या वो तुम्हें छोड़ेगा? If they didn't, if they abuse the master, you think they will stop abusing us? अगर उन्होंने उस मालिक को मारा नहीं, उन्होंने छोड़ा नहीं मारने के लिए, तो क्या वो तुम्हें छोड़ेगा मारने से? You know, all the disciples, they died a brutal death. If you look at the history. जो सभी शिष्य थे यीशु के, उनकी मृत्यु बहुत दर्दनाक हुई। But nobody knows the price that they had to pay. लेकिन कोई नहीं जानता कि उनको वो कीमत क्या चुकानी पड़ी। And saints, there are very few people who pay the price. Very few people. बहुत कम लोग हैं जो कीमत चुकाते हैं। That's the reason you know them. और यही कारण है कि आप उनको पहचानोगे। God will never use a person just like that. परमेश्वर किसी भी मनुष्य का इस्तेमाल ऐसे ही नहीं करेगा। There's a price to be paid behind the doors. दरवाजे के पीछे एक कीमत चुकानी पड़ती है। And the price is total surrender to God's plan and His will. और वो कीमत है परमेश्वर की इच्छा, उसके प्लान को पूरी तरह से समर्पित होना। You know, I think about Anna who was there, a prophetess who was there in the temple. मैं उस जो भविष्यद्वक्ता जो स्त्री थी उसके बारे में सोचता हूँ, हाना। She was there in the temple since she was a widow, and day and night she was praying and fasting. और वो विधवा स्त्री बहुत सालों से उस मंदिर में प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना करती थी। She didn't preach. उसने प्रचार नहीं किया। Yet, before she could leave the earth, she saw the Savior. फिर भी उसने धरती छोड़ने से पहले उस उद्धारकर्ता को देखा। You know, there are a lot of people there will be a lot of surprises in heaven actually when the Lord starts giving rewards. जब परमेश्वर जब रिवॉर्ड देना शुरू करेगा तो बहुत सारे हमको आश्चर्य कर्म दिखेंगे, वहाँ पर आश्चर्य दिखेगा। Because there are a lot of people who are there who are not well known to people. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बाकी लोगों को नहीं पता है। Only God knows them. केवल परमेश्वर उनके बारे में जानता है। You remember when the Lord spoke about John the Baptist? याद कीजिए जब परमेश्वर ने बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में बात किया। Angel Gabriel told Zacharias, जो गैब्रिएल जो स्वर्गदूत था उसने जकरिया से कहा, he shall be great in the sight of the Lord. वो परमेश्वर की नजर में महान होगा। Not in the sight of men, but in the sight of the Lord. मनुष्य की नजर में नहीं, परमेश्वर की नजर में वो महान होगा। You can be very great in the sight of men, but very small in the sight of the Lord. आप मनुष्य की नजर में बहुत बड़े हो सकते हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप बहुत छोटे हो सकते हो। It's better to be great in the sight of the Lord than to be great in the sight of men. परमेश्वर के नजरों में बड़ा होना काफी महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा मनुष्य की नजर में बड़ा होना। Because what God testifies about you and me is nothing but the truth. क्योंकि परमेश्वर ने आपके और मेरे विषय में जो गवाही दी है वो सत्य है। Man's testimony about us will keep on altering. It keeps on changing. क्योंकि जो मनुष्य की जो गवाही हमारे विषय में होगी वो बदलते रहेगी। Today he will speak well about you. Tomorrow he won't speak well about you. आज वो आपके बारे में भला कहेंगे, कल आपके बारे में बुरा कहेंगे। Today you win, they will applaud. आज अगर आप जीतते हो तो आपके लिए वो तालियां बजाएंगे। Next year you lose, they will not applaud. अगले साल आप हारोगे तो आपके लिए ताली नहीं बजाएंगे। God's testimony about you and me remains the same. लेकिन परमेश्वर की गवाही हमारे लिए हमेशा एक ही है। Hallelujah. हालेलुया। Let every man be a liar, but God alone is truth. सब मनुष्य झूठे लेकिन केवल परमेश्वर सच्चा। Hallelujah. Thank Hallelujah. you, Jesus. You know, the Lord was just ministering to me from Luke chapter 1. परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे लूका पहले अध्याय से। This entire week, almost 2 weeks I can say,
I've been reading Luke 1 again and again and again and again and again. तो पिछले 2 हफ्तों से मैं लूका पहला अध्याय बार बार पढ़ रहा था. Now you got to understand something, that Luke was not a disciple of the Lord. तो आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जो लूका है वो यीशु मसीह का शिष्य नहीं था. In fact, he was not even a Jew. वो तो यहूदी भी नहीं था. Luke was a Gentile. लूका वो अन्य जाति से आता था. And God used this Gentile to write the book of Luke and the book of Acts. लेकिन परमेश्वर ने इस अन्य जाति से जो अविश्वासी था पहले उसका इस्तेमाल किया लूका की पुस्तक और प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखने के लिए. And these are the two books which are very powerful, and everything that is impossible is written in those books. और ये दोनों बुक बहुत सामर्थ्यशाली है और जो कुछ असंभव है जो कुछ असंभव है वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है. And Paul calls him Luke, the beloved physician. पौलुस उसको कहता है कि लूका जो प्रेमी डॉक्टर है वो. Luke is a doctor by profession. जो लूका है वो वैद्य है, डॉक्टर है उसके काम से. His head must be spinning to write about the virgin birth. उसका जब दिमाग है वो घूमता होगा जब उसने सुना होगा कि यीशु मसीह का कुंवारी के द्वारा जन्म हुआ. When he would have asked Mary, "Are you serious?" जब उसने मरियम के बारे में बात किया होगा उससे पूछा होगा कि सच में ऐसा हुआ था क्या. Because see, Luke is a person who's collected information from everybody. He's collected information from the disciples, from Mary, from this one, that one, everybody. He compiled it and he's given it to us. तो जो लूका था उसने सारे शिष्यों से बात किया, मरियम से बात किया, उनसे पूरा इंफॉर्मेशन लेके फिर उसने पुस्तक को लिखा. So when he must have come to Mary, she said, "Are you serious that when you were a virgin you conceived him?" तो लूका जब मरियम के पास गया होगा पूछने के लिए तो उसने पूछा होगा कि सच में आपका जो यीशु मसीह का जन्म आपके गर्भ से हुआ था क्या. And the Holy Ghost must have spoken through. I said, "Yes." और पवित्र आत्मा ने उसके द्वारा बात किया होगा और कहा होगा कि हाँ. If Luke was a gynec, अगर जो लूका था अगर वो गायनक होता, he must have seen so many deliveries taking place. उसने बहुत सारे बच्चों का जन्म होते हुए देखा होगा. He must have done so many surgeries, उसने बहुत सारे सर्जरी की होगी, given so many medicines to so many people. बहुत सारे औषधियाँ दिया होगी बहुत सारे लोगों को. And here now he has to write about the virgin birth. और यहाँ उसको कुंवारी के द्वारा हुआ जन्म उसके बारे में लिखना होगा. We find it very easy to read, but it was very difficult for him to write. हमें बहुत आसान है वो पढ़ना लेकिन उसके लिए बहुत कठिन होगा लिखना ये Since चीजें. he is a research scholar, संतो वो रिसर्च स्कॉलर है. he has practiced medicine. उसने जो औषधि है He वो- knows how conception takes place. उसको पता है कि जन्म कैसे होता है. And there, now he's listening to somebody telling that, "I conceived him when I was still a virgin." और आप सोच सकते हो कि मरियम जब उसको बोल रहे होगे कि मैं कुंवारी थी तभी मेरे गर्भ में यीशु मसीह That's आया. why Luke 1:3, it says, "It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things." From the very first, verse 3, chapter 1, Luke chapter 1, verse 3. लूका पहला अध्याय उसका 3रा वचन. इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं. So is writing this to excellent Theophilus. तो ये उस थियोफिलुस को लिख रहा है. Now, when he says excellent, that means he's saying that means that man, this Theophilus, has some authority. Is a man who's got a good position. तो यहाँ पर जब लूका लिख रहा है कि श्रीमान थियोफिलुस, उसका मतलब है कि जो थियोफिलुस था वो अधिकार का व्यक्ति था, उसके बड़े पद पर था वो. All right. Now he starts off with verse 5. There was in the days of Herod, the king of Judah, a certain priest named Zacharias of the coast of Ahiah, and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. 5वां वचन पहला लूका पहला उसका 5. यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था. Verse 6, and they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. वचन 6, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे. Verse 7, and they had no child because that Elizabeth was barren, and they both were now well stricken in years. वचन 7,
उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। Can you imagine, he's starting off with writing impossible things, and she's barren and she's old also. तो आप समझ सकते हो क्या कि लूका पुस्तक की शुरुआत असंभव चीजों से कर रहा है कि वो बांझ थे, उनको बच्चे नहीं हो सकते थे। Now the scripture says that it was, they threw a lot and the lot fell upon Zacharias that he had to go and offer incense in the temple. तो हम आगे देखते हैं कि उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी में जकरिया का नाम लिखा कि जो मंदिर में जाकर धूप जलाए। And he goes into the temple, और वो मंदिर में जाता है and the people are praying outside the temple. और जो बाकी के लोग हैं मंदिर के बाहर प्रार्थना कर रहे थे। And verse 11 says, and there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. वचन 11, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। Verse 12 says, and when Zacharias saw him, he was troubled and fear fell upon him. और वचन 12, जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। He must have thought, अभी खत्म करता है क्या मेरे को? उसको लगा हुआ कि अब ये स्वर्गदूत मुझे खत्म कर देगा। That's the reason the first word that angel told him was fear not. इसलिए जो पहला शब्द उस स्वर्गदूत ने उससे कहा वो कहा कि डर मत। The Lord is telling us, each and every one of us, fear not. परमेश्वर में से हर एक से कह रहा है कि डरो मत। He's still telling us, fear not about anything. वो हमसे कह रहा है कि किसी भी चीज के लिए तुम डर मत रखो। Fear not about your health. आपके स्वास्थ्य के विषय में डर मत रखो। Fear not about your job. आपके जॉब के विषय में आप डर मत रखो। Fear not about your family. आपके परिवार के विषय में आप डर मत रखो, Because it is well with you. क्योंकि आपके लिए सब कुछ सही है। And he says, but the angel said unto him, fear not, Zacharias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. वचन 13, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। Maybe this couple was there in the 70s or maybe 80s. ये जो परिवार है ये 70-80 साल का होगा। Because the scripture says they were well stricken in years. That means they were very old. क्योंकि वचन कहता है कि वो बूढ़े थे, उसका मतलब है वो ज्यादा उम्र थी उनकी। So when they got married, when Elizabeth could not conceive, they must have prayed for decades. तो जब उनकी शादी हुई जकरिया और एलिजाबेथ की, तो उन्होंने जब देखा कि वो गर्भ नहीं रख पा रही है तो उन्होंने सालों तक प्रार्थना की होगी, दशकों तक प्रार्थना की होगी। And praying, when finally things did not happen, they must have given up. तो जब उन्होंने प्रार्थना किया होगा तो अंत में उन्होंने देखा होगा कि छोड़ दो, अभी नहीं करते प्रार्थना। They would have said, forget, we are in our 80s, नहीं होगा, forget it. उन्होंने सोचा होगा कि छोड़ दो, अभी 80 साल के हम हो गए हैं, अभी नहीं होगा ये चीज। You know, there's one thing I tell you, when we give up on ourselves, and sometimes when we give up on our strength, God takes over. सुनिए, जब हम खुद की शक्ति पर और खुद पर भरोसा रखना छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर हमारी चीजों का कब्जा लेता है। We are too dependent upon our talents at times. Many a time we feel that, okay, I can do that. बहुत बार हम हमारे जो वरदान है, हमारे जो गिफ्ट्स है, उस पर बहुत भरोसा करते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ। And I believe that was the prayer that was there on the hit list of Zachariah and Elizabeth. और मुझे लगता है कि ये जो प्रार्थना होगी उनके प्रार्थना के लिस्ट में पहले नंबर पे होगी। Because that's what the angel tells him. क्योंकि स्वर्गदूत उससे कहता है That thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. क्योंकि वचन कहता है 13 में, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। Saints, God hears our prayers. संतो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। Because he said, if you shall ask anything in my name, I will do it. क्योंकि उसने कहा कि अगर तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। Verse 14 says, and thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. वचन 14, Yeah. तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। For he shall be great in the sight of the Lord, क्योंकि पर प्रभु के सामने महान होगा। and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost even from the mother's womb. और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। Wow, that's an awesome thing, that when we are in our 80s, 90s, 100s, 120 years, 130 years, 140 years, 150 years, 160 years, 70 years, 80 years, 90 years, 100 years, 120 years, 130 years, 140 years, 150 years, 160 years, 170 years, 180 years, 190 years, 100 years, 120 years, 130 years, 140 years, 150 years, 160 years, 170 years, 180 years, 190 years, 100 years, 120 years, 130 years, 140 years, 150 years, 160 years, 170 years, 180 years, 190 years, 100 years, 120 years, 130 years, 140 years, 150 years, 160 years, 170 years, 180 years, 190 years, 100 years, 120 years, 130 years, 140
a person who's there in the womb, he's full of the Holy Ghost. ये बहुत अद्भुत चीज है कि जो मनुष्य है उसके माता के गर्भ में से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुका है. What an experience. कितना अद्भुत वो. Hallelujah. आमेन. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. And verse 16 says, and many of the children of Israel shall return to the Lord their God. वचन 16, और इस्राएलियों में बहुतेरों को वो उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा. Now verse 18 says, and Zacharias said unto the angel, whereby shall I know this? For I am an old man, and my wife well stricken in years. वचन 18, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है. It's like telling Gabriel, hey Gabriel, देखो मेरा एज मालूम है क्या? अगर देखो मालूम नहीं, मैं बोलता मैं 80 साल का है और मेरी वाइफ 75 की. Now, Gabriel should have said, oh yes, I know it. आप जानते हो क्या कि जो जिब्राइल जो स्वर्गदूत था उसने कहा होगा कि हाँ मुझे पता है तू जो बोल रहा है वो. दिख रहा है, झुर्रियां दिख रही है. I didn't plan to say that. The Lord has a sense of humor, right? When Zacharias said, but I am an old man. लेकिन जब जकरिया ने कहा कि मैं तो बूढ़ा हूं, Gabriel said, you are an old man, I am Gabriel. अगर तू बूढ़ा है तो मैं जिब्राइल हूं. Wow. He said, I am Gabriel. उसने कहा मैं जिब्राइल हूं, That stand in the presence of God. जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं. Gabriel ने ऐसा नहीं बोला करके तेरे को क्या मैं प्यून देगा क्या? मैं प्रिंसिपल के प्रेजेंस में नहीं था. I come from the presence of Almighty God. मैं परमेश्वर की उपस्थिति के सामने खड़ा रहने वाला जिब्राइल हूं. उसने ऐसा कहा. That means if I come from the presence of God, if I've got a word from the Lord, it will come to pass. इसीलिए मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति के सामने खड़ा रहता हूँ और परमेश्वर मुझे जो वचन देते हैं वो तेरे लिए अगर होगा तो तेरे लिए वो पूरा होगा. Because he said, and the angel answering said unto him, I am Gabriel that stand in the presence of God, and I am sent to speak unto thee and to show thee these glad tidings. वचन 19, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ. The Lord must have told Gabriel, बात कर उससे, अगर समझो सुना नहीं ना म्यूट करके आ उसको. Can you imagine if the Lord had a mute button in his hand and he would have muted all of us? आप सोच सकते हो क्या कि परमेश्वर के हाथ में अगर म्यूट का बटन होगा, अगर आवाज बंद करने का बटन होगा तो उसने हम सबको कर दिया होता. Elizabeth must be, when Elizabeth saw him mute, she must be very happy and rejoicing. अच्छा हो गया बंद किया उसका. जब एलिजाबेथ ने देखा होगा उसका कि जकरिया का मुंह बंद हो गया तो वो बहुत आनंदित हुई होगी. 40 साल से सिर्फ अनबिलीफ बात कर रहा था, अच्छा क्या बंद किया मुंह. How do you know that he spoke unbelief? Because he said, I am an old man. How do you know that he spoke unbelief? Because he said, I am an old man. तो आपको कैसे पता कि उसने अविश्वास की बात की होगी? क्योंकि जकरिया ने कहा कि मैं तो बूढ़ा मनुष्य हूँ. लॉर्ड ने वहां से गैब्रियल को बोला, गैब्रियल प्रेस द म्यूट बटन. परमेश्वर ने फिर जिब्राइल से कहा होगा कि उसका मुंह बंद कर. The reason why he became mute was because he didn't believe the word of the Lord. वो क्यों उसका मुंह बंद हो गया? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं किया. Because he said, and behold, verse 20, and behold, thou shalt be dumb and not be able to speak until the day that these things shall be performed, because thou believest not my words, which shall be fulfilled in their seasons. 20. Wow. वचन 20, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति न की. When the Lord gives you a word and if it doesn't come to pass, make sure that you are dumb. अगर परमेश्वर का वचन आपके पास आता है और आप भरोसा नहीं करते तो या इतना
कर ले कि आप कुछ ना बोले, आप मौन हो जाए। If people ask you about your health condition, be dumb. अगर कोई मनुष्य आपके स्वास्थ्य के विषय में पूछते हैं तो आप कुछ ना बोले, मौन हो जाए। It's better to be dumb. ये बेहतर है कि आप बोलना बंद कर दें। You know, that's the reason when the children of Israel were marching towards the walls of Jericho, the Lord told them, "Hey, आवाज मत करो रे कोई." इसीलिए जब इज़राइल के लोग यरीहो की दीवार के चारों ओर घूम रहे थे तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि कोई आवाज नहीं करेगा। अगर कोई आवाज करता है ना, अभी भी वो लोग उसके आजू बाजू में घूमते रहते थे, पता है आपको? It wouldn't have fallen वो दीवार गिरती नहीं अगर वो कुछ बोलते तो। because they would have said, इतना बड़ा दीवार है, गिरेगा कैसा? हाथोड़ा तो नहीं अपने पास में, ना ही डायनामाइट फिट कर सकते हैं। The word of God brings the miracle. परमेश्वर का वचन चमत्कार लेकर आता है। Hallelujah. हालेलुया। Because you know the Lord told, the angel told, which shall be fulfilled in their season. क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा कि उसके सही वो अपने समय पर पूरा होगा, उसका वचन उसके समय पर पूरा होगा। When the Lord gives you a word, it will fulfill in their seasons. जब परमेश्वर आपका वचन देता है तो वो उसके समय पर पूरा होगा। I heard the Lord telling me to tell you, there are a lot of things the Lord has spoken to you. It will be fulfilled in their seasons. परमेश्वर ने जो वचन आपको दिया है उसके समय पर पूरा होगा। It will be fulfilled in its time. वो उसके समय पर पूरा होगा, Provided that we don't give up. अगर आप हताश होकर आप छोड़ ना दोगे तब वो पूरा नहीं होगा। अगर आप उसको पकड़े रहोगे तो वो पूरा होगा। Can you imagine if the Lord wouldn't have muted Zacharias? John the Baptist अभी भी आता था ही है। अगर परमेश्वर ने जिब्राइल ने उसका मुंह बंद नहीं किया होगा तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अभी तक आता ही रहता, Because he would have by his word he would have aborted the child. क्योंकि उन्होंने उसका अबॉर्ट किया होता उस बच्चे को। Now the scripture says that after his ministration he goes back home. और वचन कहता है कि वो उसकी सेवा करके वो उसके घर वापस जाता है, जकरिया। And verse 24 says, "My this, you know, the Lord is just beautiful in this house." वचन 24 कहता है, And after those days his wife Elizabeth conceived and hid herself 5 months. वचन 24, इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा। Saints, please listen to me. Can you just look at me for a moment? क्या आप मेरी ओर देख सकते हो? Elizabeth conceived. एलिशिबा गर्भवती हुई And after she conceived, और गर्भवती होने के बाद में she didn't blow a trumpet. उसने बड़े ट्रम्पेट नहीं बजाया। She didn't tell the people, the neighbors, everybody, "Arey, I'm carrying." उसने लोगों के सामने जाके बताया नहीं कि अरे मैं गर्भवती हूँ। People would have laughed at her and scoffed at her. लोगों ने उसके ऊपर हंसे होते, उन्होंने ठट्टा की होती। Well, are you gone crazy? क्या तुम पागल हो गई हो? Are you drunk? क्या तुम पी हुई हो? And by the unbelief they would have aborted the child. और उनके लोगों के द्वारा आया हुआ अविश्वास के कारण उन्होंने अबॉर्शन किया होता। The scripture says और वचन कहता है, she hid herself for 5 months. वचन कहता है कि उसने अपने आप को 5 महीने तक छुपा के रखा। 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 5 महीने. 1, 2, 3, 4 नहीं, 5 महीने तक उसने उसको खुद को छुपा के रखा। The meaning of the word hide means she went into prayer. तो जो शब्द है हाइड, उसका मतलब है कि वो प्रार्थना करने गई। When God gives you a word जब परमेश्वर आपको एक वचन देते हैं and when conception takes place, और जब वो गर्भ होता है, उसका गर्भधारणा होती है, don't blow a trumpet. लोगों के सामने जाकर उसको बताओ मत, Start praying. प्रार्थना करना शुरू करो। Keep on praying. प्रार्थना करते रहो, Keep on praying. प्रार्थना करते रहो। Now, when it was 5 months, जब वो 5 महीने हो गए, now women know better. 5 months the belly starts swelling. 5 महीने बाद स्त्रियां ज्यादा जानती है कि पेट दिखना शुरू होता है। So can you imagine this 80-year-old lady walking like this? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि 80 साल की जो स्त्री है वो ऐसे ऐसे चल रही है? People would have said, "Wow." लोग कहते होंगे कि वाह। And then verse 25 she said, "Thus hath the Lord dealt with me in the days when he looked on me to take away my reproach among men." वचन 25,
एलिशबा कहती है, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा काम किया है। You know, the Master has taken away our reproach from us. प्रभु ने हमसे हमारे पूरा अपमान दूर कर दिया है। Where you and I, we have been put to shame, there itself God will give us double honor. जहाँ कहीं आपको और मुझे लज्जित होना पड़ा होगा, वहाँ परमेश्वर दुगना आदर हमें देगा। Because He said it in His word, instead of your shame, you will have double honor. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जहाँ तुम्हें लज्जा का सामना करना पड़ा होगा, वहाँ मैं तुम्हें दुगना आदर दूंगा। And instead of confusion, you will rejoice in your portion. और गड़बड़ के बजाय आनंद तुम्हारा भाग होगा। Now, in the 6th month, the scripture says, Gabriel visits Mary. और वचन 26 में कहता है कि 6वें महीने में जो जिब्राइल स्वर्गदूत था वो मरियम से मिला। And he greets her और उससे मिलता है and tells her, Hail, thou art highly favored. और उससे कहता है कि जो परमेश्वर की ओर से महान अनुग्रह हुई स्त्री, The Lord is with thee, blessed art thou among women. परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है, सब स्त्रियों में तू धन्य है। And then, the angel tells her that you will bring forth a child and you shall call his name Jesus. और स्वर्गदूत उससे कहता है कि तू गर्भवती होगी पवित्र आत्मा के द्वारा और एक पुत्र को तू जन्म देगी, उसका नाम तू यीशु रखना। He shall be great and shall be called the Son of the Highest. और वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। And the Lord shall give him the throne of his father David. और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। Now verse 34 says, Then Mary said unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? वचन 34, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. और वचन 35, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। Saints, listen, at times we wonder that how is this going to happen? संतो, बहुत बार हम ये सोचते हैं कि ये चीज कैसे होगी, It's so impossible. ये तो असंभव लग रहा है। One way only. केवल एक ही रास्ता है, The Holy Ghost will come upon you. पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। When the Holy Ghost comes upon you, जब पवित्र- impossible things will become possible. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो असंभव चीज संभव हो जाएगी। Wow. हालेलुया। Because the Lord, the angel said that with God nothing shall be impossible. क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। At least Elizabeth and Zachariah, there were a lot of chances because there were chances to bring forth children. तो एलिशिबा और जकरिया के पास में एक चांस था कि बच्चे को वो जन्म देते। But this woman is a virgin. लेकिन ये जो मरियम है वो तो कुंवारी है। In other words, she's saying, biologically I know that how children are born, but I'm not understanding this logic. वो कहते होगे कि संसार के हिसाब से मुझे पता है कि ये कैसा होगा, लेकिन अभी मेरे साथ जो होने वाला है वो कैसा होगा मैं नहीं समझ सकती। She was not talking unbelief. वो अविश्वास को नहीं बोल रही थी। She was just asking the angel, just let me know how this will happen. Tell me the procedure, how it's going to happen. तो मरियम स्वर्गदूत से पूछ रही थी कि आप मुझे बताइए कैसे होगा। And the angel tells that the Holy Ghost will come upon you, and the power of the highest shall overshadow you. और स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। Now, to add to it, और उसको आगे उसमें और जोड़ने के लिए the angel said, And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age. And this is the 6th month with her, who was called barren. वचन 36, और देख तेरी कुटुंबिनी एलिशा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। If the angel wouldn't have told her about Elizabeth, Mary wouldn't have been encouraged, I tell you. अगर स्वर्गदूत ने मरियम को एलिशिबा के बारे में बताया नहीं होता तो उसको तो प्रोत्साहन नहीं मिला होता। Because Mary must have thought that, if my cousin can conceive at the age when she is 80, if this is possible, this is also possible. तो जब मरियम ने सुना तो उसको लगा होगा कि अगर एलिशिबा के साथ जो हो सकता है वो जो 80 साल की है तो मेरे साथ भी हो सकता है। That's the reason, saints, it is very important, very necessary to see people who are successful in ministry. इसलिए जो सेवकाई में सफल है उनके तरफ देखना बहुत अच्छा है। Don't look at people who have fallen down.
जो लोग गिर चुके हैं उनकी तरफ देख के फायदा नहीं है। Understand until they rise back, they bounce back. अगर वो फिर से वापस नहीं आते तब तक उनकी ओर देखना में कोई मतलब नहीं। Because verse 37 says, for with God nothing shall be impossible. क्योंकि वचन 37 कहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। The Lord is telling us, nothing is impossible with me. परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing is impossible with me. मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Perhaps there are a lot of things that may look very impossible to us. बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि जो हमारे लिए असंभव है, But because the word declares, but with God nothing is impossible. लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। When it says, it doesn't say for God nothing is impossible. It says with God it is not impossible. Nothing is वचन ऐसा impossible. नहीं कहता कि परमेश्वर के लिए, लेकिन परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। When it says with, that means you are cooperating with His laws. तो जब आप परमेश्वर के साथ, उसका मतलब है कि आप उसके साथ, उसके नियम में जब आप आते हो तो आपके लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। Now everybody look at verse 38. अब वचन 38 को देखते हैं। And Mary said, और मरियम ने कहा, behold the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. Hey, वचन 38, hallelujah. मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। You know, Mary, when she heard the salutation from the angel, and when the angel spoke to her, she didn't say thank you. तो जब मरियम से जब स्वर्गदूत मिला और सब कुछ बताया तो मरियम ने उससे ये नहीं कहा कि धन्यवाद। No, there was a response from her. She said, you have spoken this word, I receive it. उसने उसका प्रतिसाद दिया, उस स्वर्गदूत के वचन का प्रतिसाद दिया कि तूने जो वचन बोला है मैं उसको ग्रहण करती हूँ। Because she said, be it unto me according to thy word. Amen. क्योंकि मरियम ने कहा कि देख मैं प्रभु की दासी हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। The moment she said, be it unto me according to thy word, she was receiving, she was absorbing God's sperm into her body. तो जब वो ऐसे कह रही थी कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, उसका मतलब है कि वो गर्भधारणा परमेश्वर के वचन से कर रही थी। Saints, you cannot conceive without a seed. संतो, गर्भधारणा बिना बीज के नहीं होती, There has to be a seed. बीज चाहिए। Every miracle, there has to be a seed. हर एक चमत्कार के लिए एक बीज चाहिए। Every healing, that has to be a seed. हर एक चंगाई के लिए एक बीज चाहिए। All that the woman does is receive the seed. स्त्री उस बीज को ग्रहण करती है। See, God has made women always on the receptive side. जो स्त्री है परमेश्वर ने उनको ग्रहण करने की तरफ बनाया है। She will never give, she will always receive. वो देगी नहीं लेकिन वो ग्रहण करेगी, स्वीकारेगी। That's the way God, because it is man who gives, it's a woman who receives. तो परमेश्वर ने ऐसे बनाया है कि मनुष्य देगा और स्त्री उसको स्वीकार करेगी, उसको ग्रहण करेगी। That's the reason when Adam received from Eve, he fell into trouble. इसलिए जब आदम ने हवा से ग्रहण किया तब जाके वो परेशानी में फंसा। बोला अरे उल्टा कैसा हो गया, औरत ने इसको दिया, आदमी नहीं देने मांगता ना। गड़बड़, वहां से पूरा गड़बड़। Anyway, forget. We have been redeemed. Praise God. Thank you, Jesus. हमें वहां से छुटकारा मिल चुका है। The enemy used the woman to destroy mankind, and God used the same woman to destroy the enemy. शैतान ने उस स्त्री का इस्तेमाल किया मनुष्य का नाश करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसी स्त्री का इस्तेमाल किया मनुष्य जाति को छुटकारा देने के लिए। So Mary said, be it unto me according to thy word. मरियम ने कहा कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। God is telling us, don't say anything, only say, be it unto me according to your word. परमेश्वर कहता कि कुछ और मत कहो, केवल यह कहो कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ होने दे। Look out for scriptures and say, Lord, be it unto me according to thy word. और वचन की ओर देखे और कहे कि परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। Be it unto me according to thy word. तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। You want to get out of that EMI? Be it unto me according to thy word. अगर आपको EMI से बाहर निकलना है तो कहिए कि परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो।
I am a prosperous man, be it unto me according to thy word. मैं समृद्ध मनुष्य हूँ और तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। I live in divine health, be it unto me according to thy word. मैं दैवीय आरोग्य में चलता हूँ, तेरे वचन के अनुसार ये मेरे साथ हो। I shall not die but live to declare the works of the Lord, be it unto me according to thy word. मैं मरूंगा नहीं लेकिन जीऊंगा और परमेश्वर के नाम के उसके कामों की घोषणा करूंगा, ये ऐसा तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। I am the seed of Abraham, be it unto me according to thy word. मैं अब्राहम की संतान हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में ऐसा हो। There is only one life I know, the life that is in Christ Jesus, that I have received it in my spirit, be it unto me according to thy word. केवल एक जीवन के बारे में मैं जानता हूँ, वो है यीशु मसीह का जीवन जो मैंने स्वीकारा है, और ऐसा ही मेरे साथ हो तेरे वचन के अनुसार। If we do what Mary did, will bring the impossible into manifestation. अगर हम जैसे मरियम ने किया वैसे हम करते हैं तो असंभव चीजों का हम प्रकटीकरण हमारे जीवन में देखेंगे। Now the scripture says Mary made haste and she went to meet Elizabeth. और वचन 38-39 में कहता है कि मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी के देश यहूदा के एक नगर को गई। And she entered into the house of Zacharias and saluted Elizabeth. और वह जकरिया के घर में जाकर उसने एलीशिबा को नमस्कार किया। And it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. वचन 41, जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। That means when Mary was at the doorstep, कि जैसे मरियम जब उनके दरवाजे के पास थी, she must have said, Eli, उसने कहा कि एली, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Can you imagine? वो मुंह से आवाज आया, praise the Lord, the babe in her womb leaped for joy. क्या आप सोच सकते हैं कि जब उसने परमेश्वर की स्तुति हो ऐसा सुना, तो जो बच्चा उसके गर्भ में था एलीशिबा के, वो आनंद से उसने वो उछला। Hey, listen. सुनो, बच्चा सिर्फ हिला नहीं, बच्चा सिर्फ हिला नहीं, छलांग मारा, उड़ी मारा ऐसा। he jumped. When John must have leaped, that means वो बेबी पता नहीं यहाँ तक आया रहेगा। जब यूहन्ना जब गर्भ में था, बपतिस्मा देने वाला जब गर्भ में था, जब उसने छलांग मारी होगी तो यहाँ छाती तक आ गया होगा। You can't leap when you are sleeping like that. आप अगर सो रहे होगे तो आप छलांग नहीं मार सकते। Your position be in a standing position like that. आपको खड़ा होना होगा छलांग मारने के लिए। That means the moment the salutation, she heard the salutation, the babe heard the salutation, he leaped for joy, the scripture says. Wow. तो जब वो उसने नमस्कार को सुना तो बच्चा जो गर्भ में था उसने छलांग लगाई, उसने उछाल मारी। And Elizabeth was filled with the Holy Ghost. और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। Saints, I'm telling you something. संतों मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। Very soon when we'll start greeting one another, we will be filled with the Holy Ghost. जब हम एक दूसरे को नमस्कार करना शुरू करेंगे तब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। ऐसा खाली praise the Lord नहीं रहेगा। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. When I say praise the Lord, man, he's filled with the Holy Ghost. I'm filled with the Holy Ghost. आमीन। जब मैं प्रेज द लॉर्ड कहूंगा तो पवित्र आत्मा से हम भर जाएंगे। And once you are filled with the Holy Ghost, if any sickness is lingering, it will leave. और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो जो कुछ बीमारी थोड़ी बहुत भी रहेगी तो वो निकल जाएगी। And the word declares, and she spake with a loud voice, saying, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. और उसने कहा कि तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। Now can you imagine, Elizabeth doesn't know anything about what has happened to Mary. याद रखिए एलीशिबा को पता नहीं है कि मरियम के साथ क्या हुआ है। And she says, and whence is this to me that the mother of my Lord should come to me? वचन 43-43, यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। You know when did this happen? Because Elizabeth was filled with the Holy Ghost. When you are full of the Holy Ghost, you will know already things that have already happened. आमीन। एलीशिबा ऐसा कैसे कह सकी? जब वो पवित्र आत्मा से भर गई थी तब उसने ऐसा कहा कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास कैसे आई है। वैसे ही पवित्र आत्मा से जब आप भरोगे तो हो चुकी चीजों को पवित्र आत्मा आपको बताएगा। When you are filled with the Holy Ghost, nothing is hidden from you. जब पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो कोई भी चीज आपसे छुपी नहीं रहेगी। Hallelujah. हालेलुया। Be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, making melody in your hearts unto the Lord, giving thanks unto God always in the name of our Lord Jesus Christ. आमीन।
इसलिए वचन कहता है कि दाखरस से मत वाले मत बनो, लेकिन पवित्र आत्मा से भर जाओ और एक दूसरे के साथ में भजन और एक दूसरे की उन्नति करो, उसके भजन गा गा कर। Verse 44 says, "For lo, as soon as the voice of thy salutation," my God, saints, get ready for the voice of our salutation reaching the people. They'll be filled with the Holy Ghost. आमीन। संतो तैयार हो जाओ कि जब कभी तुम किसी संतों से नमस्कार करोगे, प्रेज द लॉर्ड कहोगे, तो वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। Empty praise the Lord नहीं रहेगा. It will be full of power. खाली प्रेज द लॉर्ड नहीं लगेगा, लेकिन सामर्थ से भरा हुआ प्रभु की स्तुति हो, ऐसा नमस्कार आप करोगे। Hallelujah. हालेलुया। अरे, when people are in trouble, the moment you tell them praise the Lord, boom. जब कोई किसी परेशानी में होगा, अगर आप उसको प्रेज द लॉर्ड कहोगे तो उस परेशानी से वो छुटकारा पा लेगा। When you tell somebody praise the Lord, that person who is there in the wheelchair will come out of the wheelchair just like that. जब आप किसी को प्रेज द लॉर्ड कहोगे तो जो व्हीलचेयर पे बैठा हुआ मनुष्य रहेगा वो खड़ा हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। When you just say praise the Lord, any sickness that is there in the body will just leave that person. अगर आप जब प्रेज द लॉर्ड कहोगे तो कोई बीमारी उसके शरीर में होगी तो वो छोड़ जाएगी उसके शरीर को। That's the power, and that is the glory that we are going to live in. ये महिमा में हम जीना शुरू करेंगे। That is the glory that God wants us to live in. इस महिमा में परमेश्वर चाहता है कि हम रहना शुरू करें। And the glory of the Lord shall be revealed, the scripture says. और परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, ऐसा वचन कहता है। Hallelujah. हालेलुया। And blessed, verse 45, and blessed is she that did not believe. Just check in your word. वो है क्या? वचन में ऐसा लिखा है कि धन्य है वह जिसने विश्वास नहीं किया, ऐसा लिखा है क्या? अपने बाइबल में एक बार देखिए, वचन 46 What does it say? तो 45 क्या लिखा है? She, उसने क्या किया? because the scripture says, for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord. वचन 45 में कहता है धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। There shall be a performance of the Lord, what the Lord had spoken to you. जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो पूरा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। And Mary saying, my soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Savior, for he hath regarded the low estate of his handmaiden. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. वचन 46 तब मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। For he that is mighty had done to me great things. आमीन। वचन 39 क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं And holy is his name. और उसका नाम पवित्र है। And his mercies on them that fear him from generation to generation. वचन 50 और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Now if you look what Mary is speaking over here, आप देखोगे कि मरियम यहाँ क्या कह रही है। she is speaking from 1 Samuel. वो पहला शमूएल की किताब से कह रही है। She is speaking the word of God. वो परमेश्वर के वचन कह रही है। That means Mary was a woman who meditated on God's word. उसका मतलब है कि मरियम वो स्त्री थी जिसने परमेश्वर के वचन पर मनन किया। भाइयों ऑटोमेटिकली मुंह से नहीं आया, अंदर था, इसके लिए मुंह से आया। वो वचन she had that word in her spirit, that's why it came out from her mouth. मुंह से जब आता है, जब हार्ट के अंदर बात होती है। The word would come out of your mouth when it is in your heart. So जो मरियम के दिल के अंदर जो वचन था वो मुख से बाहर आया। So whatever word Mary had in her heart, it came out of her mouth. Now the word declares Mary abode with her for 3 months. और वचन कहता है कि मरियम उसके साथ 3 महीने तक रही। अभी जॉन द बैप्टिस्ट और प्रभु यीशु मसीह का जो एज का जो डिफरेंस है 6 months है। The age difference between John the Baptist and Jesus is 6 months. अभी 3 महीने में भी ना the belly starts swelling. After 3 months, the belly doesn't start swelling. No, it starts swelling, right? 3 months. I'm not sure. Okay, fine. Huh? Girls can tell me. 5 months. Okay, fine. All right. But can you imagine? She is looking at Elizabeth's tummy again and again and again and again and again. क्या आप समझ सकते हो कि मरियम एलिशबा के पेट की ओर बार बार देख रही थी। So the signal was, if this, she would have touched her belly. If this is possible, this is possible.
तो मरियम ने एलिशबा के पेट को स्पर्श करके कहा होगा कि अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है. Look at people who have received miracles from the Lord and tell them, if this is possible, this is also possible. जिन लोगों के जीवन में चमत्कार को आप देख रहे होंगे तो उनके पास जाके कह सकते हो कि अगर ये संभव है तो मेरे साथ भी वो संभव है. If the Lord has blessed somebody with a 2 BHK debt-free house, if that is possible, this is possible for me also. अगर परमेश्वर ने किसी को 2 BHK घर से आशीर्वादित किया है, अगर वो संभव है तो मेरे लिए भी संभव है. Hallelujah. हालेलुया. Is the Holy Ghost ministering to us? क्या पवित्र आत्मा हमारी सेवकाई कर रहा है? Now, the time comes when Elizabeth, the scripture says, now, verse 57, now Elizabeth's full time came that she should be delivered and she brought forth a son. वचन 57, तब एलिशबा के प्रसव का समय हुआ और उसने पुत्र का जन्म दिया. And then they wanted to name the child. और उनको उनके बच्चे का नाम रखना था. Now, can you imagine Elizabeth, she tells that he shall be called John. और आप क्या सोच सकते हो कि एलिशबा कहती है कि उसका नाम यूहन्ना होगा. Verse 62 says, and they made signs to his father how he would have called him. तो उन्होंने वचन 62, तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है. Now everybody please look at me for a moment. तो सब लोग मेरी ओर कृपया देखिए. How do you make signs? आप चिन्ह कैसे करोगे? हाथ से ना. हाथों से करोगे. Especially when people who cannot speak. हाथ से करोगे and tell them. तो जो बोल नहीं सकते तो वो कैसे बात करते हैं? ऐसे संकेत में बात करेंगे, हाथों से इशारा करके बात करेंगे. Zachariah must have got very angry. जकरिया को बहुत गुस्सा आया होगा. I'll tell you why. मैं आपको बताता हूँ क्यों. वो बोला कि अरे मैं गूंगा है बहरा नहीं. बोलना मुझे सुनाई दे रहा है मेरे को. You speak to me, I can listen. वही I'm not deaf. मैं बचपन से गूंगा नहीं, मेरे को गूंगा बना है इसलिए गूंगा है. I'm not dumb from my birth, but I have been made dumb. सुनाई देता मेरे को. बोल जॉन. I can hear. I'm not deaf. Saints, you can imagine what was happening to me in my home when the Holy Ghost was showing me that. संतो आप सोच सकते हो क्या कि मेरे साथ क्या हो रहा होगा जब पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहे थे. एक घंटा हंसा मैं बहुत, पता आपको. I was laughing for an hour. Can you imagine the Holy Ghost sitting with you and showing you the scriptures which is so humorous here? क्या आप सोच सकते हो कि आप पवित्र आत्मा के साथ बैठे हो और वो आपको ऐसा वचन दिखा रहा है जो ऐसे आनंद से भरा हुआ है, हंसी से भरा हुआ है. I really can't understand how can people read the word and nothing happens to them. मैं सच में सोच नहीं सकता कि लोग कैसे वचन को पढ़ते हैं और उनके साथ में कुछ नहीं होता. The word of God is all joyful. परमेश्वर का वचन सब आनंद से भरा हुआ है. जब मैं देखता हूँ ना उसके अंदर people read the word of God the way the Catholic priest reads the word. लोग वचन को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कैथलिक जो प्रीस्ट है वो जैसे वचन को पढ़ते हैं वैसे. Sorry Catholic priest, if you have got the Holy Ghost, you are good. कैथलिक प्रीस्ट सॉरी, अगर आपका पास पवित्र आत्मा है तो आप सही हो. Hallelujah. हालेलुया. And the word declares, वचन कहता है, and he asked for a writing table and wrote saying, his name is John. वचन 63, उसने लिखने की पट्टी मांगकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है. Can you imagine 9 months this guy is mute? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि 9 महीना ये मनुष्य इसका ये मुंह बंद है, इसका गूंगा है ये. After the child, he names the child, the Lord just opens his mouth just like that. और जैसे उसने उसके बेटे का नाम रखा, परमेश्वर उसका मुंह खोल देता है. And when he opens the mouth, he starts praising God. और जैसे वो उसका मुंह खोलता है तो वो परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करता है. He is no more in unbelief. वो अब अविश्वास में नहीं. He doesn't talk about that he's an old man. वो अभी ये नहीं कहता कि मैं बूढ़ा मनुष्य हूँ. He speaks about the goodness of the Lord. वो परमेश्वर की भलाई के विषय में बात करता है. And just praises God. और उसकी स्तुति करता है. And just magnifies the Lord. उसके नाम को ऊंचा करता है. And prophesies about the child. और उसके बेटे के विषय में भविष्यवाणी करता है. Saints, when we are filled with the Holy Ghost, we will do nothing but prophesy. आमीन. संतो, जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे तो हम केवल भविष्यवाणी करेंगे. Hallelujah. हालेलुया. Can we all rise up? क्या हम सब खड़े हो सकते हैं? Thank you, Father. Hallelujah. हालेलुया. Musicians, can I have you all on the stage? Thank you, Lord.
Has the Lord spoken to all of us today? Yes. Thank you, Lord. क्या परमेश्वर ने हमसे बात किया आज? Just lift your hands to the Lord. अपने हाथों को परमेश्वर की ओर ऊंचा करें. You know this word, this entire chapter, the entire chapter is amazing, ये पहला पूरा अध्याय बहुत अद्भुत है and the Lord still wants me to study on it more. और प्रभु चाहता है कि मैं फिर से उसको पढूं. But out of this chapter, there is only one verse that the Spirit of God was emphasizing more, even when I was studying this chapter. और पूरे अध्याय में से एक वचन था जो परमेश्वर बार-बार मुझे दिखा रहे थे. Church, are you all listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? I said out of the entire chapter, there was only one verse. Of course, the whole chapter is the Word of God. तो पूरा अध्याय परमेश्वर का वचन, लेकिन उसमें से एक वचन परमेश्वर मुझे बार-बार दिखा रहे थे. It was like, the Spirit of God taking a magnifying glass, and I'm just the font size and everything just increasing just like that. तो ऐसा था कि पवित्र आत्मा मैग्नीफाइंग ग्लास लेके वो वचन मुझे दिखा रहे हैं और बड़ा-बड़ा अक्षरों में वो दिखा रहे हैं. Saints, don't study the Bible without the Holy Ghost. संतो बिना पवित्र आत्मा के आप वचन का अध्ययन मत कीजिए. The author will give you millions of revelations from just one chapter. जो लेखक है वो आपको बहुत सारे प्रकटीकरण देगा. That's why the Bible is not boring for me. It's like I can hear the Lord screaming from the pages of the Bible. इसलिए बाइबल पढ़ना मेरे लिए बोरिंग काम नहीं है, क्योंकि मैं वचन में से परमेश्वर को चीखते हुए सुन सकता The हूँ. word of God is living and powerful. परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थ्यशाली है. So the only word that the Spirit of God was magnifying is, जो परमेश्वर का जो आत्मा है वो एक वचन जो मुझे बार-बार दिखा रहे थे वो ये था. any guesses? That's it. Yay! तेरी इच्छा के अनुसार मेरे साथ हो. Be it unto me तेरी इच्छा के अनुसार मेरे साथ हो. according to your word. तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो. Even people right now who are watching me, जो भी ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, not necessary that I go to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है. अगर आपने बोला be it unto me according to thy word, you will receive your miracle. If you say कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, तो वैसा ही आपके साथ होगा. The moment you say be it unto me according to thy word, you will have a conception. जिस क्षण आप कहोगे कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, उस समय आपके चमत्कार की गर्भधारण आपके जीवन में होगी. And the baby will grow. और वो बच्चा आपके जीवन में बढ़ेगा. Your miracle will grow. आपका चमत्कार बढ़ेगा. And a time will come when you will start delivering miracles. और समय आएगा कि आप चमत्कार को जन्म देना शुरू करोगे. Even with your healing. चंगाई से Receive it in the name of Jesus. आपकी चंगाई को आप स्वीकार करो. Be it unto me आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में ऐसा ही हो. according to your word. आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो. This word was accepted by Mary for the impossible. मरियम ने ये वचन असंभव चीज के लिए उसके जीवन में लिया. Because it was for a virgin birth. क्योंकि वो कुंवारी गर्भ के विषय में कहा गया था. That was one of the most impossible thing. सबसे असंभव बात है कुंवारी का गर्भवती होना. But the impossible became possible when she said, "Be it unto me according to thy word." लेकिन वो असंभव संभव में तब बना जब उसने कहा कि तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो. You can make all things possible by receiving God's word and saying, "Be it unto me according to your word." आप असंभव चीजों को आपके जीवन में ले सकते हो जब आप कहोगे कि तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु. So throughout the entire week, you can keep on telling the Lord that be it unto me, be it unto me, be it unto me according to your word, according to your word, according to your word, according to your word, according to your word. Amen. पूरे हफ्ते में आप इसको पढ़े, उस पर मनन कीजिए और कहिए कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो. When Jairus' daughter was sick, Jairus told the Lord, you don't have to come to my house. जो याईर थी जब उसकी बेटी बीमार थी तो उसने यीशु से कहा कि आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं है. Speak the word only. उसने कहा कि केवल आप शब्द बोलिए. Excuse me, it was Jairus. It was a centurion servant. I'm sorry. सेंचुरी था जो अधिकारी था, उसका दास था, वो उसके विषय में लिखा गया है. Not Jairus. I'm sorry. याईर के विषय में नहीं, सॉरी. The centurion servant said. अधिपति का जो सेवक था तो उसके विषय में था, तो अधिपति कहता है. He said, "Speak the word only." आप केवल शब्द कहिए. Don't speak your symptoms.
एक सिम्टम्स सेंटेंस, बॉडी में जो फील हो रहा है ना वो मत बात करो. जो सिम्टम है, जो बीमारी है, उसके विषय में बात मत करिए. Don't speak your lack. कमी के विषय में बात नहीं कीजिए. Don't speak anything which does not contribute to the word of God. जो कुछ भी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उसके विषय में मत बोलिए. Speak the word only. केवल उसके वचन को बोलिए. The Lord is telling us, अरे बाकी बात मत करो, सिर्फ मेरा वर्ड बात करो. Don't speak anything else other than my word. God is saying this. No wonder God told Joshua, मेरा वर्ड तुम्हारे मुख के अंदर 24 घंटा रहने दो. Lord said to Joshua, let my word be in your mouth for 24 hours. You will make your way prosperous. The word of God in your mouth will bring prosperity. परमेश्वर का वचन आपके मुख में समृद्धि को लेकर आएगा. The word of God in your mouth will bring healing. परमेश्वर का वचन आपके मुख में चंगाई को लेकर आएगा. Be it unto me according to your word. तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो. No matter what is the sickness, be it unto me according to thy word. बीमारी चाहे कुछ भी हो, लेकिन तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो. That is the best way to receive your healing. ये है उत्तम तरीका आपके चंगाई को ग्रहण करने का. That is the best way to receive your deliverance. आपके छुटकारे को ग्रहण करने का ये सबसे उत्तम तरीका है. Be it unto me according to thy word. तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो. The word of God, what God spoke to Mary, God is speaking to all of us this afternoon. Be it unto me according to thy word. जो वचन परमेश्वर ने मरियम से कहा, वही वचन परमेश्वर हमारे जीवन में कहता है. और मरियम के समान हमने कहना चाहिए कि परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो. Greater is he that is in me than he that is in the world. मेरे अंदर जो है वो महान है उससे जो इस संसार में है. No weapon fashioned against me shall prosper. कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध है वो मेरे विरुद्ध सफल नहीं होगे. And every tongue that rises against me judging me, और हर एक जीभ जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ी होती है, I will condemn it. मैं उसको उसमें से छुटकारा पाऊंगा. I am the righteousness of God in Christ Jesus. मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ. I tread upon serpents and scorpions. मैं सांप और बिच्छू को कुचलता हूँ. And over all the power of the enemy. और हर एक शैतान की ताकतों को. And nothing shall by any means harm me. और कोई भी चीज किसी भी तरीके से मुझे हानि नहीं पहुंचाएगी. I dwell in the secret place of the Most High. मैं परमेश्वर के छुपे स्थान में रहता हूँ. And I abide under the shadow of the Almighty. और उसके स्वर्ग पंखों के तले में छुपा रहता हूँ. I will say of the Lord, you are my refuge, my fortress, my God, in him will I trust. मैं कहूँगा कि तू मेरा गढ़ है, तू मेरी चट्टान है. Surely he has delivered me from the snare of the fowler. निश्चय उसने मुझे दुष्टों के कामों से छुटकारा दिया. The Lord is my light and my salvation. प्रभु मेरा प्रकाश है और मेरा उद्धार है. Whom shall I fear? मैं किससे डरूं? The Lord is my strength of my heart. परमेश्वर मेरे दिल की ताकत है. Whom shall I be afraid? मैं किससे डरूं? When the wicked, even my enemies and my foes, they came upon me. जब मेरे दुष्ट और मेरे जो शत्रु मेरे पास आएंगे, to eat up my flesh, मुझे खाने के लिए, they stumbled and fell. वो लड़खड़ाएंगे और गिरेंगे. You know, the Spirit of God shows me that there are many over here whom the enemy is trying to put lot of words and condemning. तो बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो शैतान है उनके ऊपर दोष लगा रहा है. Many of them. बहुत से लोग हैं जिन पर शैतान दोष लगा रहा है. There is only one way to confront it, is be it unto me according to thy word. और उसके विरुद्ध जाने के लिए एक तरीका है, वो यह है कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो. I cannot be poor because I am the seed of Abraham. मैं गरीब नहीं हो सकता क्योंकि मैं अब्राहम का बीज हूँ, मैं उसकी संतान हूँ. How God has anointed me with the Holy Ghost and with power. परमेश्वर ने जैसे मुझे पवित्र आत्मा से और सामर्थ से मेरा अभिषेक किया है. And I go about doing good. और मैं अच्छे काम करते हुए जाऊंगा. Healing all who are oppressed of the devil. जो कुछ शैतान से कारण बीमार है उनको मैं चंगा करते हुए जाऊंगा. Big and effective doors have been opened to me by the Lord. अच्छे दरवाजे परमेश्वर मेरे लिए खोल रहा है. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. Speak the word only.
परमेश्वर के केवल वचन को, केवल उसके वचन को बोलिए, Don't speak anything else but the word only. कुछ और नहीं, केवल उसके वचन को बोलिए। No matter what you feel in your body, आपके शरीर में आपको कुछ भी लग रहा होगा, don't speak your feelings. आपके भावनाओं को आप मत बोलिए, Speak the word. केवल उसके वचन को बोलिए, Speak the word only. केवल उसके वचन को बोलिए, Speak the word only. केवल उसके वचन को बोलिए, The word only. केवल उसके वचन को बोलिए, The word only. उसके केवल वचन को आप बोलिए, The word only. केवल उसके वचन को बोलिए, The word only. उसके केवल वचन को, The word only. केवल उसके वचन को, Don't speak anything else कुछ और नहीं, केवल उसके वचन को आप बोलिए, but the word. केवल उसके वचन को आप बोलिए। God didn't speak anything else but his word. परमेश्वर ने कुछ और नहीं बोला, केवल उसने वचन को, उसके वचन को बोला। If God would have spoken something else, he wouldn't have got any results. अगर परमेश्वर ने उसके वचन के अलावा कुछ और बोला होता तो उसको परिणाम नहीं दिखते। But God only spoke the word. परमेश्वर ने केवल उसके वचन को बोला, And because he spoke the word, he got results. और क्योंकि उसने उसके वचन को बोला तो उसको उसके रिजल्ट, उसको परिणाम उसको दिखे। If you speak the word of God only, अगर आप उसके केवल वचन को बोलोगे, you will get the God type of results. आप परमेश्वर के समान उसके परिणाम को देखोगे। I live in divine health and I'm prosperous. मैं देवी आरोग्य में चलता हूँ और मैं समृद्ध हूँ। He himself took my infirmities and bare my sicknesses. उसने मेरी बीमारी को, मेरा अपराधों को उसके ऊपर उठा लिया। He is my Jehovah Rapha. वो मेरा यहोवा राफा है। I shall not die but live to declare the works of the Lord. मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा और उसके कामों की मैं घोषणा करूंगा। I'm moving only upward and forward. मैं आगे और ऊपर बढ़ूंगा। I'm making progress. मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। I have the life of God in me. परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है। I have the God kind of life in me. परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की तरह का जीवन मेरे अंदर है। I am highly honored मेरा बहुत बड़ा आदर होता है, because God has highly honored me. क्योंकि परमेश्वर ने मेरा आदर किया है। I am his beloved मैं उसका प्रिय हूँ, because God says that I am his क्योंकि beloved. परमेश्वर कहता है कि मैं उसका प्रिय हूँ। I can do all things through Christ which strengtheneth me. मैं सब चीजें कर सकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। Hallelujah, Lord. हालेलुया। Oh, I give you praise, Father. हम आपको स्तुति देते हैं प्रभु। Lord, we cannot do it on our own strength. प्रभु हम हमारी खुद की ताकत से ये नहीं कर सकते। I ask you, Lord, that you will help each and every one of us to speak nothing but your word. प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब में से हर एक की सहायता करोगे कि हम केवल आपके वचन को बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We give you the praise. हम आपको स्तुति देते We हैं, give you the glory. हम आपको महिमा देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन। आमेन। I would like to call upon Pastor. हालेलुया। हम सब आशीर्वादित हुए हैं। हालेलुया। है ना, प्रभु का वचन हम सब के लिए है। आमेन। तो जो भी प्रभु कहता है बोलना है, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, और वैसा ही होगा। आमेन। हम आखिरी गीत गाएंगे। You see, the word of God was, it was like hullad causing among us. Man. You know? It was just like chaos in the presence of God, but a good chaos. Amen. It was just like brainstorming. हालेलुया। You know? Thank you, Father. Let's sing that song. वाह हालेलुया हुल्लड़ होएगा। आज हम लोगों ने गाना गाया था ना सुबह में। Yes. Everybody remembers the song? Amen. Okay. वाह हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वाह हालेलुया जमघट होएगा, वाह हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वाह हालेलुया जमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वाह हालेलुया हुल्लड़ होएगा। और एक बार वाह हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वाह हालेलुया जमघट होएगा, वाह हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वाह हालेलुया जमघट होएगा। वाह जब देखूंगा यीशु को, वाह हालेलुया हुल्लड़ होएगा।
वहाँ खुशी की जगह होएगी, आनंद ही आनंद होएगा, वहाँ खुशी की जगह होएगी, वहाँ आनंद ही आनंद होएगा। कितने लोगों को पौलुस देखना है? पौलुस होएगा, गाइए। पौलुस होएगा, मूसा होएगा, दाऊद होएगा, मत्ती होएगा, अब्राहम भी वहाँ होएगा, होऊंगा मैं वहाँ, हालेलुया हुल्लड़ होएगा। दूंगा यीशु को वहाँ, हालेलुया हुल्लड़ होएगा। आऊंगा मैं, हालेलुया गाऊंगा मैं वहाँ, हालेलुया आनंद होएगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को वहाँ, हालेलुया आनंद होएगा। वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, पतरस पानी पर फिर ना चलेगा, वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, आमीन। पतरस पानी पर फिर ना चलेगा, दाऊद होएगा, योना होएगा, मूसा होएगा, नोहा होएगा, अब्राहम भी वहाँ होएगा, होऊंगा मैं वहाँ, हालेलुया हुल्लड़ होएगा। स्वर्गाच्या राज्यात मी चाललो, तारणाच्या होडीत, तारणाच्या होडीत, स्वर्गाच्या राज्यात मी चाललो, तारणाच्या होडीत, तारणाच्या होडीत, तेथे मी पाहिलं सगळ्यांना, मी पाहिलं सगळ्यांना, तेथे मी पाहिलं सगळ्यांना, सगळ्यांना, सैतान पण तेथे नसणार, सैतान तिथे बस नसणार, हो तेथे मी पाहिलं सगळ्यांना, तिथे मी पाहिलं सगळ्यांना, सैतान पण तेथे नसणार, सैतान तर तेथे नसणार, सगळे तेथे असणार, सैतान तेथे नसणार, सगळे तेथे असणार, सैतान तेथे नसणार, स्वर्गाच्या वैभवी राज्यात, हे स्वर्गाच्या राज्यात मी चाललो, तारणाच्या होडीत, तारणाच्या होडीत, स्वर्गाच्या राज्यात मी चाललो, तारणाच्या होडीत, तारणाच्या होडीत, तारणाच्या होडीत, तारणाच्या होडीत, तारणाच्या होडीत, तारणाच्या होडीत, आमेन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा और पूरी कलीसिया कहेगी एक दूसरे से मिलिए, सहभागिता कीजिए और फिर से मिलेंगे हम अगले रविवार को। मैन